Hey guys, I'm Soumyadeep. Welcome back to a new video. Hope you are absolutely fine in the lockdown. So today in this video, I discuss regarding density and unit weight. So before starting the video about soil mechanics, so just uh, see what I'm covering in this video. Number one, type of density and unit weight in soil mechanics. Number two, derivation. Number three, relation. In this video, I'm going to show you some tips or tricks how easily you can convert one density to another density. Before starting this video, I want to just go through once what is the density and what is the unit weight. And after that, we'll start this video. Because I feel when I was student like you, when there was such topic, sometimes forgot what is the density and what is the unit weight. Okay. If you know the what is density and unit weight, just comment below what is the unit weight and what is the density of water. So let's get started. So what is density? Suppose you take a mass. This is the mass. Assume that weight, the mass is m and the volume is v. And definitely this matter or this particle have certain volume and certain mass. So density that equal to mass per volume, that is called m by v. So if I concern about the unit, so what should be the unit? Just tell me what is the unit of mass. It is the gram in cgs and kg in SI. And what is the volume unit? It is the centimeter cube and it is the meter cube. Yes, so that is the unit of density of any kind of substance, any kind of material in universe. So I think there is no doubts. So let's get started the unit weight. So yeah, there is something called weight. That means that is somewhere related with the gravity. The unit weight generally denoted by sine gamma and density denoted by rho. So gamma that equal to that mass have particular weight, that is W, and same V is the volume. So unit weight equal to weight per unit volume. So weight is W1 and volume is V. Yeah. If I concern about the unit, then unit should be the weight is CGS unit dyne and SI unit Newton. Volume same as centimeter cube, meter cube. So that is the unit. You comment below what is the dimensions of volume, mass, density, and unit weight. Start the session. So first I will discuss about types of soil density. Okay, there's few types of soil density, and there is one more thing: types of soil unit weight. Okay, is bulk density. Okay,
Same, bulk unit weight. Number 2, dry density. Dry unit weight. 3, solid density. Solid unit weight. 4, saturated density and saturated unit weight. And last, submerged density, and this is submerged unit weight. So now I am talking about some notation. Bulk density, that is rho bulk. Dry density, rho d or rho dry. Solid density, rho s. Saturated density, again rho s. Now there is some confusion. So you can write rho solid. Why? Because rho s, that is universally understood, that is the saturated density, and rho submerged, again sub, not s. So same thing here for bulk unit weight, gamma bulk or gamma b. This is gamma d for dry unit weight. This is gamma solid, you can write here. This is same gamma s, and this is gamma sub. I hope notation types are clear. If you have some issue, then definitely do comment in the comment section. I will get back to you. Okay, fine. Now we talk about this every single density, and after that we start a derivation. Okay, let's get started. So start first is bulk density or bulk unit weight. What is this? I hope you remember the three-phase diagram of soil. If you have some doubt about three-phase diagram, do comment in the comment section. Tell me what is your problem. So yeah, that is the air, that is the water, and that is the solid. So mass of air consider as 0. It's very less. That is the mass of water, mass of solid, and volume of air VA, volume of water VW, volume of solid VS. So what is the dry density? That is the rho bulk or rho B, whatever it is. Suppose you take a soil sample, total mass by total volume, total mass by total volume. Sometime bulk density known as moist density. So don't be confused. Sir, ये moist density कहाँ से आ गया था? आपको नहीं बताया sir? Because in bulk density there is chance is, that is mean degree of saturation, lie between 0 to 1. So somewhere, sometime it may be partial weight. That is why moist density. So don't panic. जी सर moist density क्या चीज़ होता है? So let's get back to rho bulk. So rho bulk means total mass, mass of air, mass of soil, mass of water by volume of air, volume of soil solid, volume of water. But we know that MA we consider as 0. So rho bulk basically
ms plus mw by va plus vs plus vw. Okay, and now if I say what is the gamma bulk or gamma b, that is the weight of soil, weight of water by volume of air plus volume of soil plus volume of water. Okay, I hope there's no doubt. Dry density. When you attempt any kind of soil problem, just start with the three-phase diagram. This is three-phase diagram. So that is again MA, MW, MS, that is VA, VW, VS. Dry density, that means there is no water. If there is no water, mass of water, that should be 0. Mass of air, we consider 0. Volume of water, that equal to 0. So gamma dry, if we start from the base, mass of air plus mass of water plus mass of soil, that is by VA plus VW plus VS. So MA 0, MW 0, VA not 0, VW 0. So हम क्या लिखेंगे? MS by VA, VW, VS. सॉरी, ये हम नहीं लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे ना भाई. लोग यहाँ पे गलत चीज करता है, लोग गलती यहाँ पे करता है. दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग. अब यह सब समझो. देखो, मास ऑफ सॉइल एग्री, बट ये थ्री फेज सिस्टम में, ये थ्री फेज में मास ऑफ वाटर इज एब्सेंट. अगर मास ऑफ वाटर एब्सेंट है तो दैट प्लेस टेकन बाय हुम? टेकन बाय एयर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वैल्यू होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्वायर कर लेंगे. तो ये जो टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो ये आपका थ्री फेज है, ठीक है. मान लो ये 20 ml, ये 30 ml, ये 40 ml. ओके फाइन. सीजीएस में कर रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली 30 ग्राम होगा, ये 0 होगा. मान लो ये 80 ग्राम्स. तो इस सॉइल को आपने ड्राई बना दिया. इस सॉइल को ड्राई बना दिया मतलब ये 30 ग्राम्स इवापोरेट हो गया, राइट. तो 30 ग्राम इवापोरेट हो गया मतलब 30 ml पानी वहां पे नहीं है. बट 30 ml पानी का जो प्लेस है वहां पे कौन आ जाएगा? कौन एक्वायर कर लेंगे? सॉइल. सॉलिड तो नहीं करेंगे, यहाँ पे एयर ने एक्वायर कर लेंगे. तो बिफोर इवापोरेट और ड्राई, ओपन ड्राई मेथड, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 20 ml फॉर एयर, 30 ml फॉर water plus 40 ml for soil solid, that is the 90 ml. And now after evaporation, that is equal to 20 ml for air, 30 ml पर फिर से एयर, बिकॉज एयर ने इस प्लेस को एक्वायर कर लिया, इस प्लेस को एक्वायर कर लिया. सो 30 ml फॉर एयर जो न्यू एक्वायर किया, 40 ml फॉर सॉइल, दैट इज द 90 ml अगेन. सो इसीलिए हम ड्राई डेंसिटी को लिख सकते हैं. चलो नया लिखते हैं. रो ड्राई दैट इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, और गामा ड्राई लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय V. So yes, that's it. So यहाँ पे बच्चे लोग गलती करता है, वो सोचता है यार वाटर तो है नहीं, तो वाटर का वॉल्यूम क्यों लेंगे भाई. अक्सर ये गलती हम भी करते हैं, सब करते हैं. तो ये थोड़ा
केयरफुल रहो। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे लिखा ही है सॉइल सॉलिड, मतलब ये आपको कंसीडर बोल रहा है यू ओनली कंसीडर सॉइल सॉलिड। तो भाई इसका मास होगा ms, वॉल्यूम होगा vs, तो रो सॉलिड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और गामा सॉलिड क्या होगा, गामा सॉलिड यही होगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। नाउ वी टॉक अबाउट saturated डेंसिटी। अब सैचुरेटेड डेंसिटी को देखो, सैचुरेटेड डेंसिटी मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, मतलब यहाँ पे जो एयर था वो एयर नहीं है, वो वाटर रिक्वायर कर लिया वाटर, ये भी वाटर हो गया, ये भी वाटर हो गया, तो मतलब ये हो गया VW, ये हो गया आपका VS, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम। और ये आपका तो MS, MW, ये भी MW, which is equal to वॉल्यूम ऑफ एयर। आप लोगों से ये क्या बात हो गया, आप बोल रहे यार मास ऑफ वाटर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ये कैसे बात हो गया सर। देखो अब समझो, मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, वही सेम एग्जांपल देखो 40 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ml, 30 ml, और ये मान लो 20 ml। तो अब डिग्री सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होगा, ये एयर नहीं रहेगा, वाटर यहाँ पे एंट्री होगा, वाटर एंट्री होगा, एयर एग्जिट होगा, ठीक है। तो भाई अगर एयर एग्जिट होगा तो इस प्लेस में कौन आएगा, नया वाटर आएगा। तो वाटर डेंसिटी इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो भाई आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो प्लेस में कौन रहता है, एयर था, तो एयर का तो मास ऑफ वाटर दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। तो सॉइल इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंसेप्चुअल। तो आप लिख सकते हो मास ऑफ वाटर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। सो क्या होगा, रो सैचुरेटेड इक्वल टू मास ऑफ वाटर जो था, मास ऑफ वाटर जो नया वाटर आया, और मास ऑफ सॉलिड, एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम, दिस इज टोटल वॉल्यूम V। तो अब ये कर सकते हो, इसको टोटल मास बना दो, मास ऑफ वाटर, इसको मास ऑफ सॉलिड कह दो, और इसको कह दो वॉल्यूम। तो गामा सैचुरेट क्या होगा, गामा वाटर, गामा सॉइल सॉलिड वही V, बस काम खत्म। और एक चीज बाकी है, वो है सबमर्ज डेंसिटी। आप मुझे बताओ यार सबमर्ज मतलब आप क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबमर्ज, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो सबमर्ज मतलब जो चीज, अगर ये आपका वाटर लेवल है, जो चीज जस्ट सिंक किया, उसको कहते हैं सबमर्ज। अब देखो बात क्या है, मान लो दैट इज योर वाटर लेवल, और कोई पार्टिकल जस्ट ड्रॉप ही हुआ, पार्टिकल ड्रॉप हो गया, मतलब ये पूरा सॉइल क्या हो गया, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो जैसे ये ड्रॉप किया ड्यू टू बाउंस फोर्स, ऐसे बाउंसी काम करेंगे, और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम होके सबमर्ज होंगे। दैट मीन्स रो सबमर्ज दैट इक्वल टू रो सैट माइनस रो वाटर, दैट्स इट मैन। एंड गामा सबमर्ज दैट इक्वल टू गामा सैट
minus gamma water. So that is all about types of density in soil mechanics. So in exam point of view say, yeah, bulk density, dry density, saturated density are very important. When you go to the permeability, there is coming a quicksand condition, then you understand actual concept of submerged density. And same for here, this and this is very important. तो अब देखते हैं डेरिवेशन. बिकॉज जो डर पैदा होता है यह से पैदा होता है, और यह तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जो सॉइल मैकेनिक्स लेके लोगों के अंदर जो डर का काम करता है वो यह से पैदा होता है. और अगर वो डर को मिटाना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद रहना पड़ेगा. देखो ये वीडियो के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका डर जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यू विल लव विद सॉइल मैकेनिक्स. जस्ट सी डेरिवेशन. ओके, चलो शुरू करते हैं डेरिवेशन. वी स्टार्ट फ्रॉम डेरिवेशन फ्रॉम रो बल्क. ओके, तो सर रो बल्क क्या है? रो बल्क इज मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल. चलो, तो रो बल्क हम ऐसे लिख सकता है, ए में तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा तो उसको जीरो कर दो. आप जा सकते हो सर. एम डब्ल्यू एज इट इज, एम एज इट इज. अब देखो ये वी और वी डब्ल्यू को क्या कह सकता है? वी ए और वी डब्ल्यू को हम कह सकता है वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल. इसके बाद क्या होगा सर? चलो देखते हैं. अब सर एक काम करना है मुझे सर. अब सर एक काम करेंगे, वी एस से पूरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे? वी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही सर शॉक हुआ मुझे, कुछ करने का कुछ है नहीं कोरोना पे, तो हम चलिए डिवाइड कर देंगे. तो वी बी बाई वी एस प्लस वी एस बाई वी एस. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं. तो डाउट बताओ मुझे. मैं नहीं चाहता हूँ सॉइल में आपको डर लगे. अब देखो सर, वी बी बाई वी एस इसको कहता है ई, दैट इज द वॉइड रेशियो. यू नो दैट E equal to VV by VS. If you don't know, then do comment in the comment section. If you know, so tell me what is the range of void ratio. This is 1. अब सर आप बताओगे सर आप क्या कर रहे हो सर? ऐसा तो कुछ होता नहीं है. ऐसा तो हम कुछ कह सकते हैं. चलो देखते हैं क्या कह सकते हैं. तो MW by VS and MS by VS. तो एक काम करते हैं ना, ये एमएस और वीएस को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रो सॉलिड. थोड़ा देर पहले सीख लिया. और ये 1 प्लस ई एज इट इज. तो सर क्या होगा? चलो देखते हैं क्या हो सकता है. अब मैं थोड़ा ना इधर उधर करेंगे. देखो ये तो काम करेंगे सर. आप एक काम करो, एम डब्ल्यू बाई एम एस कर दो और एम एस बाई फिर से वी एस कर दो. ऐसे ही सर शॉक हुआ. और ये रो सॉलिड जैसे है वैसे रखो. ये 1 प्लस ई रख लो. एम डब्ल्यू बाई एम एस को कहते हैं वाटर कंटेंट. एम एस बाई भी कर सकते हैं रो सॉलिड. और ये है रो सॉलिड, दैट इज 1 प्लस ई. तो रो सॉलिड 1 प्लस W बाई 1 प्लस ई. तो रो बल्क अब हो गया. तो सर एक चीज बताओ, या तो किसी का डाउट है? नहीं है ना? अगर डाउट है तो आप कह सकते हो. बस लास्ट लाइन लिखने वाला हूँ. रो सॉलिड को क्या कर सकते हैं? रो W इंटू जी कह सकता है. आप सर बुक ओपन करके देख लो, बुक में क्या है. That is the final solution. और यहाँ पे वो ट्रिक्स देने वाला हो. तो गामा बल्क क्या होगा? जहां पे रो है वहां पे बस गामा कर दो, काम खत्म हो गया बस सर. तो ये हो गया गामा बल्क. आप मेरा जो सजेशन है, आप बस इसको 1 टाइम और 2 टाइम घर में डिराइव करिए, पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा.
अब ये जो फॉर्मूला है इससे इस बाकी जो डेंस है ना आपका डेंसिटी सब यहाँ से आएगा। कैसे आएगा देखो। और एक चीज याद रखो, सभी को पता है ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू, जहाँ पे ई इक्वल टू वॉइड रेशियो, एस इक्वल टू डिग्री ऑफ saturation, G equal to specific gravity, water content. Guys, अगर you have some doubt in word ratio, saturation, specific gravity, water content, if doubt, do comment in comment section. नहीं तो ये जो मजा होता है ना सॉइल का वो नहीं आएगा। अब आपका डिसीजन है। तो चलो देखते हैं रो क्या है ड्राई। कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, पहले ना लिखता हूँ रो बल्क दैट इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस ई। एक काम करो यार, रो डब्ल्यू जी का अंदर ले लो, इसको जी डब्ल्यू कर दो। और मुझे एक चीज बताओ, when soil is dry इस मतलब वाटर जीरो। अगर वाटर जीरो है, वाटर कंटेंट क्या होगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड, ये भी जीरो होगा, वाटर कंटेंट भी जीरो हो गया। बस लिख लो रो वाटर जी 1 प्लस ई दैट इज द रो बल्क, दैट इज द रो ड्राई। और गामा ड्राई क्या होगा, गामा ड्राई वही से वही होगा, जहाँ पे रो है वहाँ पे कर दो गामा, गामा वाटर जी 1 प्लस ई। अब आता है सैचुरेटेड, वही से करते हैं। हमको क्या पता है, रो बल्क दैट इज इक्वल टू 1 रो वाटर जी 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस ई। देखते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जी प्लस जी डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब मुझे पता क्या है, ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू, तो इसको थोड़ा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। रो डब्ल्यू इक्वल टू जी प्लस एस ए सी 1 प्लस ई। आप मुझे बताओ रो सेट में जब सॉइल इज सैचुरेटेड देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, राइट और रॉन्ग। और एस इक्वल टू 1 होगा तो रो सेट इक्वल टू रो डब्ल्यू जी 1 इंटू ई मतलब ई 1 प्लस ई। काम खत्म हो गया, नो नीड टू मेमोराइज ब्लाइंडली। गामा सेट दैट इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई 1 प्लस ई। देन लास्ट थिंग रो सबमर्ज, क्या बताया हूं मैं, रो सेट माइनस रो वाटर। ठीक है भाई, तो रो सेट क्या है, रो डब्ल्यू जी 1 प्लस रो डब्ल्यू जी प्लस ई 1 प्लस ई माइनस रो वाटर। अब ले लो कॉमन रो वाटर को, जी प्लस ई माइनस 1 प्लस ई। रो सब इक्वल टू रो वाटर 1 जी माइनस 1 प्लस ई। and gamma submerged that is equal to gamma water g minus 1 plus e। तो भाई ये जो पूरा है ये है ड्राई डेंसिटी। हाँ बहुत चीज़ है ड्राई डेंसिटी, बट स्टिल नाउ you don't need to remember all the derivation, just practice this and derive everything। अगर मेमोराइज करोगे तो फंस जाओगे पूरा का पूरा। So yeah, that's it all of the video. So yeah, if there's some doubt, do comment in comment section, and there is some your
demand for any kind of student engineering video, do comment in comment section. I will definitely make a separate video for that. Yeah, thank you for watching this video. Goodbye.